Good afternoon, everyone. Welcome to Investor Education Program by NCDX. We'll just wait for 5 more minutes and then we'll start with our webinar. Good afternoon, everyone. Welcome to Investor Education Program presented by NCDX. Topic for our today's webinar is concept of hedging. So we'll just begin with the webinar. So just a quick disclaimer that this presentation is general in nature and it is meant only for the educational purpose. And please don't take it as any kind of trade advice. It is just for education purpose. So in a futures market, and I just want to say that in between the presentation, अगर किसी के भी कोई भी doubts हैं, तो वो उसको chat box में लिख सकते हैं and towards the end of the webinar, हम आपके questions को answer करेंगे. And also इस presentation में to make it little more interactive and थोड़ा सा एक monotonous ना हो, तो हमने कुछ Q&A भी इसमें insert किए हैं. तो उसके आंसर्स भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो पाए. तो आई जस्ट स्टार्ट विद द माय प्रेजेंटेशन. तो जो भी जैसे कि कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट है उसमें 3 टाइप की जनरल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं और वी कैन से कि 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस मार्केट में. सो फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स आर स्पेकुलेटर्स, फिर आते हैं हमारे हेजर्स और फिर आते हैं हमारे आर्बिट्राजर्स.
So, before talking more about these trading strategies, I just want to ask that who regulates the commodity derivatives market in India? And you have four options: RBI, IRDAI, PFRDA, and SEBI. So you can type your answers in the chat box. And I can see some answers. And yes, the answer SEBI is correct. So SEBI, Security and Exchange Board of India, is the regulator for commodity derivatives market in India. So now we'll start with what is speculation. So speculation is when a person trades with having a view in their mind. So a person can take long position with a view that underlying will move up in future, or he can take a short position, that is he can sell and take a short position with the view that underlying will move down. And then there are spread trading, जिसमें अगर आपका कोई प्राइस व्यू नहीं है बट यू हैव अ व्यू ऑन द प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू कमोडिटीज और टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, तो उसको हम स्प्रेड ट्रेडिंग कहते हैं. एंड नॉट हेजिंग इज ऑल्सो अ स्पेकुलेशन. सो जब हम एक एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करते हैं तो उसमें एक प्राइस रिस्क इन्वॉल्व रहता है. तो अगर कोई कोई भी इंडिविजुअल है जिसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके पास रिस्क होता है कि क्या पता फ्यूचर में प्राइसेस अप हो जाएं या फिर फ्यूचर में प्राइस डाउन भी हो सकते हैं. तो इसके बेसिस पे उसको एक प्रॉफिट एंड लॉस उसका हमेशा एक रिस्क में रहता है. एंड और वी कैन से कि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स एक रिस्क पे रहते हैं. To avoid this price risk, manufacturer they can buy and store raw material when prices are low. कि अगर कोई मैन्युफैक्चर है तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि फ्यूचर में उसके रॉ मटेरियल के प्राइस अप हो जाएं, वो आज ही कोई अपना मटेरियल को बाय करके अपने वेयरहाउस में रख सकता है. और जब प्राइसेस लो हैं, और बट इससे उसके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उसका पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, प्लस उसकी एक स्टोरेज कॉस्ट आती है. इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि वो इस प्राइस को या तो अपने कस्टमर को पास कर सकता है, और एल्स ही कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट with the commodity suppliers, or else he can hedge his position in the futures market. सो इसमें एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ एग्री कमोडिटी. एंड योर ऑप्शंस आर वेदर कंडीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, changes in import and export policy, or the all of the above. So we have received few answers that yes, weather condition, the production, and the changes in export and import policies affect the prices of agri commodity in India. And then we have another question, and the Kharif crops which will be coming. So when are the Kharif crops harvested? And your options are June to July, October to November, May to June, or March to April. Uh, so yes, October to November is the correct answer. And the ongoing Kharif crop जिसकी इस time पे sowing होती है, they are harvested during October to November. Now we'll see कि hedging क्या है. So what is hedging? Hedging is taking a position in futures or options market that is opposite your cash position in the current market, in the cash market. फिर इसमें आता है कि किन लोगों को hedging करनी चाहिए. So people who are part of the commodity, or who have something to do with the physical form of that commodity, who are value chain participants, they should hedge. इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड द प्रोसेसर्स ऑफ द कमोडिटी. एंड देन इज दैट व्हाई दे शुड हेज. सो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कमोडिटी जो कमोडिटी मार्केट है, इट इज एक्सपोज टू वेरियस प्राइस रिस्क, एंड टू मिनिमाइज दोज प्राइस रिस्क arising out of one's position, one should hedge their position and protect their profit margin. क्योंकि हेजिंग में ये होता है कि हम जो हमारी कैश में पोजीशन है उसकी अपोजिट पोजीशन हम फिजिकल मार्केट में लेते हैं,
तो एनी गेन या लॉस जो किसी इंडिविजुअल को कैश मार्केट में होते हैं वो उसके फ्यूचर मार्केट से काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, और इस तरह से हम अपने जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसको सेव करके चल सकते हैं। एंड हेजिंग एक रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रैटेजी है, उससे हम, इट इज नॉट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टूल। सो हमें हेजिंग को हमेशा अपने रिस्क को कम करने की स्ट्रैटेजी के रूप में ही देखना चाहिए। सो हेजिंग का अगर हम एक सिंपल फॉर्म में, एक लिटरल मीनिंग में समझे, तो यहाँ पे दो पिक्चर हैं, एक घर है। फर्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें तो उसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है। सो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि इट इज एक्सपोज टू रिस्क। बट जैसे कि हम भी अपने घरों में देखते हैं कि वी पुट अ हेज अराउंड आवर हाउस, एक छोटी सी बाउंड्री वॉल बना देते हैं, तो उससे जो रिस्क होता है, रिस्क ड्यू टू फ्लड्स वी कैन से, या फिर एनी अदर नेचुरल डिजास्टर के उसमें भी इट इज मिनिमाइज्ड टू सम एक्सटेंट। तो यही हेजिंग, इसी जो एक लिटरल मीनिंग है उसी चीज को हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में, जब हम एग्री कमोडिटी में काम करते हैं, कोई भी प्रोसेसर, फार्मर या ट्रेडर, सो दे कैन अप्लाई। So as we discussed that it is a practice of taking a position in one market to offset the position in the current cash market. Hedgers जो होते हैं, they are market participant जो अपना रिस्क ट्रांसफर करते हैं टू स्पेकुलेटर्स। दे कैन बी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। सो प्रोड्यूसर हेजर वो होते हैं जो अपना रिस्क ट्रांसफर करते हैं विद द पॉसिबिलिटी दैट प्राइस कैन एक्चुअली डिक्लाइन इन द फ्यूचर, फ्यूचर टाइम जब उन्हें सेल करना है। जैसे कि फार्मर, आज फार्मर कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसके पास हमेशा एक रिस्क होता है कि हार्वेस्ट टाइम तक क्या पता वो जो क्रॉप ग्रो कर रहा है अभी के प्राइस देख के क्या पता वो प्राइसेस ड्रॉप हो जाएं। सिमिलरली कंज्यूमर हेजर वो होते हैं जो उस कमोडिटी को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि वी कैन टेक ऑयल प्रोसेसर हो गए जो सीड को क्रश करके ऑयल बनाते हैं, और वी कैन से अ बिस्किट मैन्युफैक्चरर जो फ्लोर को लेके बिस्किट बनाते हैं। तो उनके पास ये रिस्क होता है कि फ्यूचर में उनका जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ सकता है, विच विल अफेक्ट इट्स प्रॉफिट मार्जिन इन फ्यूचर। सो उनको हम कंज्यूमर हेजर कहते हैं। सो बेस्ड ऑन द टाइप की हमारी कैश मार्केट में क्या पोजीशन है, हेजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग हेजर और शॉर्ट हेजर। तो लॉन्ग हेजर वो होते हैं पार्टिसिपेंट हु हैव सेल पोजीशन इन द अंडरलाइंग फॉर अ फ्यूचर डेट, कि उन्हें कोई भी चीज है उसका रॉ मटेरियल या फिनिश गुड फ्यूचर डेट में सेल करना है। तो उनके पास रिस्क है कि उस उनका जो रॉ मटेरियल है जिसको वो यूज करके अपना गुड्स बनाएंगे, इट कैन गो अप इन फ्यूचर। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दे टेक अ लॉन्ग और बाइंग पोजीशन इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स हिज बाइंग प्राइस फॉर अ फ्यूचर डेट। सो इसके उससे वो अपने आप को, अपने प्रॉफिट मार्जिन को एक अपवर्ड प्राइस मूवमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली शॉर्ट हेजर वो होते हैं जो पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पास फ्यूचर डेट में स्टॉक आएगा, या फिर अभी उनके पास स्टॉक है जिसे वो फ्यूचर डेट में सेल करेंगे। इसके हम एग्जाम्पल हमारे फार्मर्स को ले सकते हैं कि आज की डेट में अगर कोई फार्मर अभी सोइंग कर रहा है तो उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में उसके पास स्टॉक आएगा, और उस टाइम पे उसको अपने, उसके पास रिस्क ये है कि उस टाइम, जिस टाइम उसको सेल करने का टाइम आए, हो सकता है प्राइसेस अभी से नीचे चले जाएं। सो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन और अ सेलिंग पोजीशन इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स हिज सेलिंग प्राइस फॉर अ फ्यूचर डेट। सो अभी जो हमने लॉन्ग हेज की बात करी उसको हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे। सो इस एग्जाम्पल में, जैसे इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एबीसीडी एक एक्सपोर्टर है ग्वार गम का, और उन्होंने एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया है टू सप्लाई ग्वार गम एट अ प्राइस ऑफ 6,500 पर क्विंटल ड्यूरिंग जून। और मान लीजिए अभी जून का जो फ्यूचर प्राइस है वो 6,400 चल रहा है। सो उन्होंने क्या, सो टू मिटिगेट देयर रिस्क, व्हाट दे विल डू इज दे विल बाय ग्वारगम टुडे एट 6,400, और इसके उससे उनका एक 100 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन बुक हो गया है। सो अब हमने यहाँ पे दो सिनेरियो लिए हैं कि अगर जिस टाइम उन्हें अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफिल करना है उस टाइम पे प्राइसेस अप होते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और प्राइस डाउन होते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो जैसे हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे
कि उन्होंने फ्यूचर्स खरीदा था 6400 पे, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आने जिस टाइम उन्हें अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर डिलीवर करना है प्राइसेस 7000 हो जाते हैं। और सिमिलरली फ्यूचर में जब प्राइस 7000 है, हम मान रहे हैं कि स्पॉट के प्राइस भी 7000 ही हो गए हैं। सो उनके जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 6500, जिस प्राइस पे उन्होंने अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया है। तो उन्हें फ्यूचर्स में क्या लॉस हुआ, बिकॉज उन्होंने 6400 पे फ्यूचर्स खरीदा था, एंड जब वो उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे यानी जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचेंगे 7000 में, तो दे एक्चुअली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज। वहीं अगर हम स्पॉट में देखें तो उस टाइम पे जब स्पॉट 6400 चल रहा था उन्होंने तब नहीं खरीदा, बट टू फुलफिल देयर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने खरीदा 7000 पे, तो उन्हें 500 रुपीज का लॉस हुआ। बट अगर हम ओवरऑल एक उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखें, क्योंकि उन्हें 600 रुपीज फ्यूचर्स मार्केट से आए और उन्होंने स्पॉट मार्केट में 500 का लॉस हुआ, सो हिज प्रॉफिट मार्जिन रिमेन इंटैक्ट एट 100 रुपीज, जो कि उन्होंने जिस टाइम पे फ्यूचर पोजीशन ली थी उनका आइडिया यही था कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन प्रोटेक्ट करें। सिमिलरली अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं, प्राइसेस 6400 से 6000 हो जाते हैं, तो ऐसे केस में उन्हें फ्यूचर्स में 400 रुपीज का लॉस हो रहा है, बिकॉज उन्होंने एक महंगे प्राइस पे खरीदा था एंड ही हैड टू सेल एट अ लो प्राइस। वहीं उन्हें स्पॉट मार्केट में 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बट अगर हम उनका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो दैट रिमेन्स इंटैक्ट एट 100 रुपीज। सो दिस इज कि एक लॉन्ग हेजर ने किस तरह से अपना प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट किया है। सिमिलरली अगर अब हम एक शॉर्ट हेज का एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्वारगम का प्रोसेसर है एंड ही हैज सम अनफिनिश्ड स्टॉक्स ऑफ ग्वारगम जिनकी कॉस्ट 6300 है, जो उनके पास अभी एक इन्वेंट्री पड़ा हुआ है जो कि सेल नहीं हुआ है। एंड करेंटली जो हमारे फ्यूचर प्राइसेस हैं जून के, दे आर एट 6400। सो व्हाट ही डिड इज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्योंकि उन्हें फ्यूचर में सेल करना है, सो व्हाट ही डिड वाज ही टुक शॉर्ट पोजीशन इन द फ्यूचर्स मार्केट एट 6400। एंड फिर यहीं पे सिमिलरली पुराने एग्जाम्पल की तरह हमने दो सिनेरियो लिए हैं कि अगर प्राइसेस अप जाते हैं तो क्या होता है और अगर प्राइसेस डाउन जाते हैं तो क्या होता है। सो फ्रॉम 6400 लेवल अगर प्राइसेस जून के टाइम जिस टाइम उन्हें स्क्वायर ऑफ करना है अपना प्राइस 7000 हो जाते हैं, सो फ्रॉम फ्यूचर्स मार्केट उन्हें लॉस होता है ऑफ 600 रुपीज, बिकॉज उन्होंने 6400 पे सेल किया था एंड देन अगेन ही हैड टू बाय एट 7000 रुपीज, तो उन्हें 6000 रुपीज का लॉस हुआ। बट इन कैश मार्केट जो उनकी गुड्स की कॉस्ट 6300 थी, ही नाउ सोल्ड देम एट 7000 रुपीज, सो उन्हें 700 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो इन दिस केस ऑल्सो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है जिस टाइम पे उन्होंने अपनी पोजीशन ली थी विच वॉज 100 रुपीज, सो दैट रिमेन्स इंटैक्ट। So this is through example of long hedge and short hedge that how a hedger was able to protect their profit margin by taking a offset or counter position in the futures market. फिर हम देखते हैं कि हेजिंग के एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले तो इट स्ट्रेचेस द मार्केटिंग पीरियड, जैसे कि फ्यूचर्स मार्केट अलाउ करता है किसी फार्मर को कि वो जस्ट जिस टाइम पे वो सो कर रहे हैं दे कैन लॉक इन देयर प्राइस इवन बिफोर देयर हार्वेस्ट कम एट दिस टाइम ऑल्सो। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इन्वेंट्री वैल्यूज, जैसे कि हमने शॉर्ट हेज के एग्जाम्पल में देखा कि अगर आपके पास कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है जिसको आप अभी नहीं बेचना चाहते, यू वांट टू सेल इन द फ्यूचर, सो बट यू आर अनसर्टेन ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, सो यू आर टेकिंग अ शॉर्ट पोजिशन इन द फ्यूचर्स मार्केट एंड दिस अलाउज टू प्रोटेक्ट योर profit margin. And also hedging permits a forward pricing of products. A manufacturer can determine the cost of raw material by buying a futures contract and then translate that price to the price of the finished product. And this will make the forward sales to store at firm prices. अभी तक तो हमने हेजिंग के सिर्फ बेनिफिट्स देखे हैं, बट हेजिंग में कुछ लिमिटेशंस भी हैं एंड विच आर बेसिस रिस्क एंड रोल ओवर रिस्क।
जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हेजिंग सिर्फ रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है, इट कैन नॉट फुली एलिमिनेट इट। सबसे पहला रिस्क जो हेजिंग में जैसे है वो होता है हमारा बेसिस रिस्क। बेसिस का मतलब होता है फ्यूचर स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस हम उस जगह का लेते हैं जहां पे भी इंडिविजुअल बेस्ड है या ट्रेडर या फार्मर बेस्ड है, माइनस द फ्यूचर्स प्राइस। अगर हमारा बेसिस पॉजिटिव आता है तो वी कॉल इट ओवर, उसको हम ओवर टर्म से बोलते हैं। एंड अगर हमारा बेसिस नेगेटिव आता है तो इट इज सेड टू बी अंडर। एंड ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एक जनरल ट्रेड की टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है। बेसिस रिस्क ये होता है कि फ्यूचर प्राइस, अभी तक हमने जो भी हमारे एग्जाम्पल लिए उसमें हमने ये एज्यूम किया कि फ्यूचर्स एंड स्पॉट आर मूविंग एट द सेम पेस। जितना स्पॉट बढ़ रहा है उतना ही फ्यूचर बढ़ रहा है, या जितना स्पॉट गिर रहा है उतना ही फ्यूचर गिर रहा है। बट कई बार ड्यू टू डिफरेंस इन मार्केट एंड लोकेशंस ऐसा नहीं होता। दे मूव इन दे may move in similar direction but उनका quantum may be different। spot and future price, जो इनका difference होता है that is basis and it gives rise to a basis risk। इसमें दो चीजें होती हैं, one is strengthening of basis। बेसिस स्ट्रेंथन होने का मतलब है कि व्हेन स्पॉट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस मोर देन द फ्यूचर प्राइस, या फिर इट डिक्रीजेस लेस देन द फ्यूचर प्राइस, उसको हम बोलते हैं कि बेसिस स्ट्रेंथन हो रहा है। लाइक बेसिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस इंक्रीज द गेन्स फॉर शॉर्ट फ्यूचर पोजिशन, ये चीज हम आगे जाके एग्जाम्पल में समझेंगे। एंड वीकनिंग ऑफ बेसिस का मतलब होता है कि स्पॉट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस मोर देन द फ्यूचर्स प्राइस और इट इंक्रीजेस लेस देन द फ्यूचर प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं कि बेसिस वीकन हो रहा है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक टी डे पे स्पॉट प्राइस किसी जगह का 6,500 है एंड उसी टाइम पे फ्यूचर प्राइस भी 6,500 है। हम बोलेंगे कि जो हमारा बेसिस है स्पॉट माइनस फ्यूचर दैट इज 0। एंड टी प्लस 30 डेज, आफ्टर 30 डेज हमारा स्पॉट प्राइस मूव होके 6,500 से 7,000 हो गया, बट हमारा फ्यूचर प्राइस है 6,700, वो सिर्फ 200 रुपीज ही बढ़ा। एंड इस केस पे हमारा बेसिस इज 300 रुपीज। तो इस स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस में हम बोलेंगे कि बेसिस स्ट्रेंथन हुआ है, इट हैज मूव फ्रॉम 0 to 300। तो इसका एग्जाम्पल के उसमें हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा एक शॉर्ट हेजर पे। सपोज एक शॉर्ट हेजर है जिसने टी डे पे 6,500 पे कोई कमोडिटी बाय करी एंड उसने उसी दिन टी डे पे उसको फ्यूचर पे सेल कर दिया 6,500 पे। जब उसके स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आया आफ्टर 30 डेज, तो उससे फ्यूचर में प्राइस था क्योंकि 6,700 एंड तो उसने फ्यूचर पे जब स्क्वायर ऑफ किया तो प्राइस वॉज 6,700। बट जब उसने स्पॉट पे स्क्वायर ऑफ किया यानी कि उसे स्पॉट में जब बेचना था, ही गॉट अ प्राइस ऑफ 7,000 रुपीज। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें फ्यूचर्स मार्केट का, दैट इज -200। एंड अगर वही हम उसका स्पॉट से प्रॉफिट देखें दैट इज 500। तो ओवरऑल बेसिस के मूव करने से एक हेजर को 300 रुपीज का फायदा हुआ। वहीं पे अगर बेसिस मूव नहीं करता, अगर स्पॉट एंड फ्यूचर दे वुड हैव मूव्ड एट द सेम रेशियो एट द सेम अमाउंट, तो उस केस में उसकी जो स्क्वायर ऑफ वाली, जैसे ये जो जहाँ पे उसने फ्यूचर में 6,700 पे स्क्वायर ऑफ किया था, ही वुड हैव स्क्वायर ऑफ एट 7,000 रुपीज, और वहीं पे उसका जो पीएनएल है वो जीरो होता, बिकॉज उसे जितना प्रॉफिट फ्यूचर्स मार्केट से आता उतना ही, जितना उसे प्रॉफिट स्पॉट से आता उतना ही उसे फ्यूचर में लॉस हो जाता। उसे ओवरऑल प्रॉफिट जीरो होता, बट बिकॉज बेसिस मूव किया ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज। वहीं पे अगर हम वीकनिंग ऑफ बेसिस का एग्जाम्पल देखें कि वीकनिंग ऑफ बेसिस मतलब कि बेसिस रिड्यूस हो रहा है। टी डे पे स्पॉट और फ्यूचर दोनों बराबर थे, दे वर एट 6,500। उस केस पे बेसिस जो था दैट वाज 0, बट आफ्टर 30 डेज स्पॉट एंड फ्यूचर्स दोनों मूव हुए, बट स्पॉट प्राइस मूव हुआ ओनली बाय 500, इट केम टू 7,000 रुपीज, एंड फ्यूचर्स प्राइस मूव हुआ बाय 700, इट केम टू 7,000
200. सो उस केस पे बेसिस स्पॉट माइनस फ्यूचर इज -200 रुपीज. सो इसका इम्पैक्ट एक शॉर्ट हेजर पे क्या हुआ कि जब उसने स्पॉट में बाय किया 6500 पे एंड उसने फ्यूचर सेल किया था 6500 पे. सो जब उसे स्क्वायर ऑफ करना हुआ, सो उसने फ्यूचर्स पे स्क्वायर ऑफ किया 7200 पे एंड उसने अपना कमोडिटी को स्पॉट मार्केट में बेचा एट 7000 रुपीज. सो उसको स्पॉट मार्केट से तो 500 रुपीज का फायदा हुआ बिकॉज उसने 6500 पे खरीदा था एंड ही सोल्ड एट 7000 रुपीज. बट उसे फ्यूचर्स मार्केट में 700 रुपीज का लॉस हुआ. सो इस केस में हम ये देखेंगे कि उसका ओवरऑल पीएनएल जो है दैट इज -200 रुपीज, यानी कि उसको ओवरऑल लॉस हुआ ड्यू टू वीकनिंग ऑफ बेसिस. एंड अगर बेसिस मूव नहीं करता, सो उस केस में उसका जो फ्यूचर्स का जो स्क्वायर ऑफ प्राइस है दैट वुड हैव बीन 7000 रुपीज एंड उसका स्पॉट का भी सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 7000 रुपीज. सो उसको पीएनएल का अगर हम देखें तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता, बट ड्यू टू वीकनिंग ऑफ बेसिस शॉर्ट हेजर को लॉस हुआ. अगर हम जो भी हमने एग्जाम्पल में समझा उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझें तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस इज गुड फॉर अ शॉर्ट हेजर एंड वीकनिंग ऑफ बेसिस इज गुड फॉर अ लॉन्ग हेजर. एंड जनरली अगर हम देखें तो बेसिस रिस्क जो है वो प्राइस से रिस्क के से जनरली कम ही होता है और इसीलिए हेजिंग जो है इट प्रूव्स टू बी अ गुड मेजर टू मिटिगेट द प्राइस रिस्क. अगर बेसिस रिस्क प्राइस रिस्क से बहुत ज़्यादा है तो हेज करने का ज़्यादा फायदा नहीं है. वन कैन हेज द प्राइस रिस्क बट बेसिस रिस्क को वन कैन नॉट हेज कम्प्लीटली. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये जैसे चना का एग्जाम्पल है. इसमें अगर हम प्राइस मूवमेंट देखें तो प्राइस का अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज का रिस्क रहता है किसी भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के लिए. बट वहीं पे उसके सामने अगर हम बेसिस का रिस्क देखें तो दैट इज ओनली 500. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एज कंपेयर टू 3000, 500 इज रीजनेबल रिस्क जो कि कोई ले सकता है. इसीलिए वन शुड हेज seeing the high price risk and the less basis risk. Then also एक rollover एक cost होती है for any hedger. It is the carrying forward cost of futures position from one contract to another. जैसे rollover can be positive also and it can be negative also. अगर हम रोल ओवर का इफेक्ट देखें, फॉर अ लॉन्ग हेजर नेगेटिव रोल ओवर इज अ गुड थिंग, दैट इज वेयर एज अ पॉजिटिव रोल ओवर फॉर अ लॉन्ग हेजर इज अ एडेड कॉस्ट. बट उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम शॉर्ट हेज का देखें, पॉजिटिव रोल ओवर फॉर अ शॉर्ट हेजर इज अ गुड थिंग बट नेगेटिव रोल ओवर इज अ इट एड्स टू इट्स कॉस्ट. एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर्बिट्राज. सो you have option की selling into futures, entering into sell and purchase transaction in spot market or entering into purchase transaction in spot and futures market or simultaneously selling into going into sell and purchase transaction in two or more market or entering into sell transaction in spot and futures market. I request the participant, जिस किसी को भी आंसर पता है, they can please write in the chat box. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है. आई जस्ट से कि द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्बिट्राज इज selling in one market and then buying simultaneously in the other market or buying in one and selling in other. जब भी हम कोई अपोजिट पोजीशन लेते हैं किसी दो मार्केट में, उनके बीच का डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए, दैट इज आर्बिट्राज. That will be it from my side on the concept of hedging. अगर किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है, they can type in the chat box and
I'll try to answer your queries. So I'll request everyone, if you have any query, you can type in the chat box. So I think that we don't have any questions as of now. So I think we can end the session here. And on behalf of NCDX, I would like to thank you all for joining in for the webinar on concept of hedging. And in future, if any of you have any query, you can mail us to ask us at the rate ncdx.com, and we'll be happy to help you. And in future, we keep on organizing such educational webinar. So you can join in future also, and we cover very different topics. So you can join for our educational webinar in the future also. Thank you for joining today's webinar. Thank you, everyone.